Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, in UCO Bank, document verification date is 16th of July. Now, one of the subscribers said, Sir, I am at Havra and my document verification is at Guwahati and no transportation is available. How I will reach there for document verification and what I should do? Now, this is what I discussed in my videos 2-3 days ago. Some people are asking why they are not calling us for document verification, and there is a lot of anxiety. But on the other hand, if they invite you for document verifications, you are not able to report. So this dilemma will continue because there are 3 points in this triangle. One is employer, that is bank. Second is you, the successful candidate, and third is public utility services. The public utility services are not in either your control or not in the control of bank. So even if bank calls you for document verifications, you are not able to reach there. So what is the remedy? This is a serious question and maybe many people are bothered about this. In such situation, 2 scenarios can emerge. One, bank may announce the postponement of document verification at its own. But if bank feels that most of the candidates can reach for documentation through alternate mode of transport, in that case they may allow the people, those are in position to come for document verification. They will check their documents, and for the rest of candidates, if they make request for extension, they may allow extension because reason is genuine. So the candidates, those are not in position to reach the venue due to these transportation issues or other issues, they should write back to the respective bank and seek extension. And seek extension for a date by which you feel you will be in position to appear before document verification. It may be 1 month, it may be 2 months, it may be 15 days, depending upon your perception. So say if the trains are already cancelled up to 12th August, naturally you should seek extension behind this date so that you are able to reach the destination. So this type of uncertainty will remain till some clarity comes. And we have to live with it. We have to learn how to live with it. Because the people, those are selected, they are in a hurry to join. But at the same time, there are not possible ways to join. So this dilemma you have to resolve, and this can only be resolved one to one, case to case basis. And that's why I'm giving you advice. You did not go into panic mode. You are selected. Your job is protected. If there is a genuine reason, naturally bank will consider the extension of your joining. You have to simply write back to them and seek the extensions with tangible reasons. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब यूको बैंक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई. अब एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे लिखा कि सर मैं हावड़ा का रहने वाला हूँ और मुझे असम में ज्वाइनिंग करना है, गुवाहाटी में. ट्रेन सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, मैं कैसे ज्वाइन करूँ, मुझे क्या करना चाहिए. 2-3 दिन पहले मैंने ये वीडियो डाली थी और उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्यों नहीं बुला रहे. और मैंने उसमें यही कहा था कि मान लो बुला भी लें तो आप पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि 3 बिंदु हैं इसके. एक बिंदु है बैंक जिसको एम्प्लॉय चाहिए, दूसरा बिंदु है आप जो सेलेक्ट हो चुके हैं, पर तीसरा बिंदु है ट्रांसपोर्टेशन. अगर ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध नहीं है और ये दोनों बिंदु चाहते भी हैं कि भाई एम्प्लॉय आके ज्वाइन कर ले, तो संभव कैसे होगा.
और इसीलिए ये एक फेज ऑफ अनसर्टनिटी है। इसके अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन प्रो एंड कॉन्स देख रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम बुलाते हैं तो ये ज्वाइनिंग संभव कैसे होगी। अब क्योंकि यूको बैंक ने बुला लिया है, तो अब इसमें जिन लोगों को कॉल आई है उनके पास क्या चॉइस है। अब इसके अंदर दो स्थिति हो सकती हैं। एक तो यूको बैंक इस डेट को एक्सटेंड कर दे यूनिलैटरली सबके लिए, या यदि यूको बैंक को ऐसा लगता है कि अधिकतर लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपने साधनों से, तो वो इस डेट को पोस्टपोन नहीं करेगा। और जो लोग ज्वाइन करने की स्थिति में होंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की स्थिति में होंगे, वो उस वेन्यू पे पहुंचेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएंगे। अब जो लोग नहीं पहुंचने की स्थिति में हैं, उनको क्या करना है? उनके पास ऑप्शन है कि वो राइट बैक करेंगे इसी बैंक को और एक्सटेंशन मांगेंगे गिविंग द रीज़न ऑब्वियस है कि आपके स्टेशन से मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल है, आप वो मेंशन करिए। अब ये एक्सटेंशन कितने दिन का हमें लेना चाहिए? जो पीरियड आप समझते हैं कि जब तक आपको मुश्किल है जाना, जैसे मान लीजिए ट्रेन अब 12 अगस्त तक कैंसिल हो गई है, तो नेचुरल है 12 अगस्त तक संभव नहीं है आपके लिए, तो इसके बिहाइंड की डेट लीजिए। 15 दिन का एक्सटेंशन लेना है, 1 महीने का लेना है, 2 महीने का लेना है, ये आपके ऊपर है। जिस पीरियड का आप एक्सटेंशन चाहते हैं रीज़न के सहित उस डिपार्टमेंट को लिखें जरूर, साइलेंट नहीं रहना। पहला तो आप वेट करिए कि अगर वो खुद ही चेंज कर देते हैं डेट्स तो उससे तो अच्छी कोई चीज़ नहीं है, पर मान लो उनको लगता है कि अधिकांश लोग आसपास के हैं और वो ज्वाइन कर जाएंगे, तो फिर आपका केस ऐसा होगा जो आप दूर से हैं और आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे, आप सिंगल आउट केस हैं, तो फिर आपको एक्सटेंशन लेना होगा। तो ये आप कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा कि इन अनसर्टन पीरियड में सिर्फ पेशेंस ही हमारी मदद करेगी, क्योंकि कोई भी ये बता नहीं सकता कि कौन सा इवेंट किस दिन होगा। आज लगता है सब कुछ ठीक हो गया, चीज़ें ओपन होने लगती हैं, अगले दिन ही कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, फिर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कदम आगे जा रहे हैं, एक कदम पीछे आ रहे हैं, फिर एक कदम आगे जा रहे हैं, एक कदम पीछे आ रहे हैं। तो अभी मतलब ये जो स्थिति है असमंजस की है। जब तक इफेक्टिवली दवाई नहीं आ जाती या इतनी प्रिकॉशंस नहीं हो जाती कि लोग उसके अंदर काम कर सकें, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। पर दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि सारी एक्टिविटीज़ खुलनी भी हैं, क्योंकि उसके बिना भी देश नहीं चल सकता, क्योंकि आर्थिक गतिविधि के बिना संभव नहीं है सरवाइव करना ह्यूमन काइंड के लिए। तो दोनों में एक मिडिल पाथ आएगा ही आएगा, और इसी को हम इंतज़ार कर रहे हैं और इसी को हम पेशेंस कह रहे हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।